دکن کے بہت مایہ ناز اور مشہور شاعر جو طنز و مزاح میں شعر کہتے ہیں، ڈاکٹر معین امر بمبو، ان کی کتاب کا آج حیدرآباد میں اجرا ہونے جا رہا ہے اور کتاب کا نام ہے خانقاہوں کی پارسل۔ تو اس موقع پر ہم نے ورق تازہ، ادارہ ورق تازہ نے ان کے شخصیت اور فن کے اوپر ورق تازہ، روزنامہ ورق تازہ میں جو ناندیڑ سے شائع ہوتا ہے، ان کا ایک خصوصی گوشہ شائع کیا ہے، اور ان کے تعلق سے جو لوگوں نے مضامین لکھے تھے ان کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ یہ جو شمارہ ہے ورق تازہ کا، اس شمارے کا اجرا جو ہے آج ہونے جا رہا ہے۔ میں ہمارے بزرگ شاعر ناندیڑ کے محمود علی سحر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کا اجرا کریں۔ آپ کھڑے جاؤ، آپ سب آ جاؤ۔ آجا ڈاکٹر صاحب، آ جاؤ۔ آپ اندر کا کھول دیجیے، آپ لے لو سب ایک ایک۔ یہ پہلے ورق تازہ کا نام بتا دو آپ، نام پہلے فرنٹ پیج بتا دو، پھر اندر کا۔ ہاں، ایسے گھوم کے آ جاؤ، سب کے پاس ہے۔ بہت اچھا۔ آپ فرنٹ پیج ہی بتا دو۔ ہاں، اب ادھر ہو جاؤ۔ ایک منٹ مبارکباد دیتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر معین امر بمبو ہمارا برسوں کا ساتھ رہا ہے اور کئی مشاعروں میں ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ مہذب انسان ہیں اور انہوں نے اپنا مجموعہ کلام خانقاہوں کی بارات پیش کیا ہے، اور اس خانقاہوں کا پارسل جس کے لیے آج اس کی رسم اجرا جناب محمد تقی صاحب ورق تازہ کے دفتر میں منعقد کیے ہیں، اور اس میں محمود علی سحر صاحب کے ہاتھوں سے میں جناب معین امر بمبو صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ایسے کئی مجموعہ کلام شائع کروائے، آمین۔ السلام علیکم۔ آج روزنامہ ورق تازہ کے دفتر میں پھر ایک خوبصورت نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ ہمیں ناندیڑ میں روزنامہ ورق تازہ کے مدیر اعلیٰ محمد تقی صاحب کے مختلف موضوعات پر اٹھائے گئے اقدامات پر فخر ہے۔ انہوں نے ہمیشہ شعری، ادبی، سماجی اور سیاسی شخصیات پر جب بھی موقع بن پڑا انہوں نے نشستوں کا انعقاد کیا۔ مشہور شاعر معین امر بمبو صاحب کا مجموعہ کلام خانقاہوں کا پارسل، جس کا رسمی اجرا آج حیدرآباد میں ہو رہا ہے، میں تقی صاحب کو خاص طور سے ان کی ستائش اس لیے بھی کروں گا کہ حیدرآباد میں ہونے والے اس رسمی اجرا کو انہوں نے آج ناندیڑ میں اپنے دفتر میں اپنے احباب کے ساتھ اس پرمسرت موقع کو سیلیبریٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہمیں یاد کیا اور اپنے دفتر میں ہمیں دعوت دی۔ ہمارے استاد محترم محمود علی سحر صاحب کے دست مبارک سے خانقاہوں کا پارسل اس کے رسمی اجرا کے موقع پر روزنامہ ورق تازہ نے
शाये किए हुए गोशे का रस्म इजरा हुआ। मैं यहाँ तमाम मौजूद अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोइन अमर बम्बू साहब का भी ख़ास तौर से इसलिए उनकी सताइश करूँगा कि उर्दू एकेडमी की रुकनियत के दरमियान में फ़िरोज़ रशीद साहब के साथ बहुत से मौक़ों पर उन्हें सुनने का मौका मिला और उनकी मुसलसिल काविशों को बहैसियत एक सहाफ़ी हम सलाम करते हैं और अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह उन्हें हवा से खमसा के साथ मज़बूत सेहत दे, बरकरार रखेगा और उनकी क़लमी काविशें और उनका क़लमी सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, सदर शोबा उर्दू, NSB कॉलेज नांदेड़। सबसे पहले मैं जो है आज वर्क़ ताज़ा के मुदीर आला मोहम्मद तक़ी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर दावत दी और मोइन अमर बम्बू जो कि मशहूर व मारूफ़ मज़ाहिया शायर हैं, उनके जो है ख़ैख़ों का पार्सल मजमूए कलाम का जो रस्म इजरा हैदराबाद में हो रहा है, उस पर एक ख़ुसूसी गोशे की इशाअत अमल में लाई गई, रोज़नामा वर्क़ ताज़ा की तरफ से अमल में लाई गई। मैं समझता हूँ कि रोज़नामा वर्क़ ताज़ा शुरू ही से ही जो है इस किस्म की जो है ख़ुसूसी जो शुमारे हैं उसके लिए मशहूर अपनी एक अलग इनफरादियत रखता है, चाहे वो ख़ुसूसी गोशा यूनुस फ़हमी हो, फ़हीम अहमद सिद्दीक़ी हो, अनीस उल हक़ क़मर हो, डॉक्टर सज्जाद अहमद ख़ां हो, डॉक्टर सैयद शुजात अली हो, ऐसे कई ख़ुसूसी गोशों का जो है उन्होंने इजरा किया, जिससे शहर नांदेड़ की जो अदबी शख्सियात हैं, शोरा हैं, उनको जो है मुतारिफ़ करने का मौका मिला। आज जो है ये जो ख़ुसूसी जो गोशा है उसमें जो है डॉक्टर मजीद बेदार और प्रोफेसर बेग एहसास और दूसरे जो मज़ामीन शामिल हैं, ये बहुत ही उम्दा मज़ामीन हैं और इससे जो है असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स और जो है तलबा को काफ़ी मदद मिलेगी। मैं फिर एक मरतबा तक़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है हमारे उस्ताद महमूद अली सहर साहब, जिनके हाथों जो है इस किताब का रस्म इजरा अमल में आया, उसके लिए आपका भी मशकूर हूँ और तमाम अहबाब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और फिर एक मरतबा आप तमाम का जो है शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफ़े, मोहतरम जनाब वर्क़ ताज़ा के मुदीर मोहम्मद तक़ी साहब की दावत पर आज एक बेहतरीन और अदबी नशिस्त में शरीक रहने का मौका इनायत फरमाने पर उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। और मोइन अमर बम्बू साहब की किताब की जो रस्म इजराई पर आज शहर नांदेड़ में दफ्तर वर्क़ ताज़ा में ख़ुसूसी शुमारा जो शाये किया गया, आज उसकी रस्म इजराई मोहतरम जनाब महमूद अली सहर साहब के हाथों अमल में आई और इस नशिस्त में मैं अपने आप को मौजूद रखकर खुशकिस्मत समझता हूँ कि वह मोहम्मद तक़ी साहब वर्क़ ताज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ़ अहबाब, मुख्तलिफ़ अदीब शोरा का गोशा निकाल कर आने वाली नई नस्लों को एक तरग़ीब दे रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली उर्दू अदब की नई नस्ल हमारे सीनियर शोरा और अदीबों से मुतारुफ़ होते रहते हैं। मैं बस इतना ही दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मोइन अमर बम्बू साहब को सेहत दे और इसी तरह की और दीगर उनकी किताबें मजमूए कलाम शाये होते रहें, जिससे हमारी इस महाराष्ट्र ही नहीं, दक्कन ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अदब नवाज लोग उनकी शायरी और उनके तहरीर से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मोइन अमर बम्बू साहब के किताब ख़ैख़ों का पार्सल के मौके पर वर्क़ ताज़ा की तरफ से ये जो ख़ुसूसी गोशा निकाल कर उन्हें तहनीत पेश की गई, उनके एज़ाज़ में लिखे गए मज़ामीन और उनके नुमाइंदा मुंतखब कलाम से हमें रूबरू होने का मौका मिला। इस तरह के बहुत खुशाइंद कदम इक़दामात जो है वर्क़ ताज़ा इदारे की तरफ से हमेशा लिए जाते हैं। मैं इस बात पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम अपने अपने शोबे के मुदब्बिर व माहिर असातिज़ा इकराम हैं, तो ये मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ हैं जिसके ज़रिए उर्दू की नई समतों को जो है राह मिल रही है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको इस तरह उर्दू की खिदमत के लिए कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैरत कसीरा।
डॉक्टर मोइन अमर बम्बू मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और तकरीबन 20 साल से मैं उनको जानता हूँ। वो मुझको जानते हैं, नांदेड़ कई बार आ चुके हैं, मुशायरों में भी और दूसरे प्रोग्रामों में भी। और उनका कलाम भी जो है तकरीबन 40 साल से लिख रहे हैं वो, और पूरे हिंदुस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी उनका कलाम छपता है, पढ़ा जाता है, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। तो ऐसा शायर दक्कन है जो दक्कनी ज़बान में शेर कहता है तंज़ो मिज़ा में, बड़ी बात है हमारे लिए, दक्कन वालों के लिए, क्योंकि तंज़ो मिज़ा में लिखने वाले रोज़ाना कम होते जा रहे हैं और ये जो है उर्दू अदब के लिए नेक शुगुन नहीं है, क्योंकि दक्कन की मिट्टी का मिजाज रहा है कि यहाँ मिज़ा जो है पाया जाता है। यानी रोज़ाना की गुफ्तगू में भी हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक तरह का मिज़ा की चाशनी हमको मिलती है। ये सिर्फ दक्कन की खुसूस है, ये वो दक्कन जो साबिक़ रियासत हैदराबाद का इलाक़ा रहा है और जिसका जो है जिसकी सल्तनत हैदराबाद रही है। और हैदराबाद की दक्कनी शायरी और दक्कनी अदब जो है एक अलग ही जो है उसका एक अदब का एक अलग ही हिस्सा शुमार किया जाता है। तो दक्कनी ज़बान में शेर कहना और तंज़ो मिज़ा में कहना ये बहुत खूबी है की बात है कि ये बासलाह शायरी एक बात कहता है। चुनांचे मुझे जैसा मालूम हुआ कि मोइन अमर बम्बू साहब का दूसरा मजमूए कलाम खैखाहों की पार्सल का आज हैदराबाद में शाम में इजरा होने वाला है, आज यानी 28 नवंबर को शाम में। तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना जो है इनका एक गोशा रोज़नामा वर्क़ ताज़ा में शाये की जाए, क्योंकि वर्क़ ताज़ा की ये खुसूसियत रही है कि जब जब भी किताबों का इजरा हुआ या कोई अदबी प्रोग्राम हुए, ड्रामे के प्रोग्राम हुए या मुशायरे हुए, तो हमने ऐसे गोशे शाये करते रहे हैं। और इस तरह से एक जो है बहुत बड़ा काम हुआ है उर्दू का। कोई अगर रिसर्च स्कॉलर चाहे तो सिर्फ वर्क़ ताज़ा के अदबी गोशों पर जो है रिसर्च कर सकता है, इतना मवाद तो हमने जमा कर रखा है। तो ये भी एक जो है मौका था हमारे लिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने उसके लिए राज़ी हो गए और वहाँ से उन्होंने मज़ामीन और उनका कलाम भिजवाया। हमने कोशिश की खूब से खूब तर गोशों को बनाने की, हो सकता है इसमें कुछ खामियां रह गई हों, लेकिन ये एक मोइन अमर बम्बू से एक लगाव, मोहब्बत और दोस्ती थी कि जिसकी वजह से ये काम कर सका हूँ मैं उनको, मोइन अमर बम्बू को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका दूसरा शेरी मजमुआ आज शाया हो रहा है। इसके पहले उनका एक और मजमुए कलाम बम्बू बाज़ार शाया हुआ था, काफ़ी ज़ख़ीम था और वो भी काफ़ी अदबी हलक़ों में पसंद किया गया, पजीराई ही उसकी। तो मैं ऐसी ख्वाहिश करता हूँ कि इस मजमुए की भी पजीराई होगी और अदबी दुनिया इसको हाथों हाथ लेगी। यहाँ इस मौके पर जो मेरे अहबाब और ये सब लोग राइटर्स हैं, सहाफ़ी हैं, शेर कहते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, एक ज़माने से लिखते हैं, तो ये रटवाड़ा के जाने पहचाने लोग हैं यहाँ पर सब। ये इन लोगों ने मेरे एक मुख्तसर से जो है कॉल पर लब्बैक कहा और यहाँ आए। मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।